Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty Insights with MJ. Friends, आज है 11th November and we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones along with the trading plan for Nifty and Bank Nifty on 12th November. Yes, 12th November is again a weekly special day. कल थर्सडे है तो थर्सडे का मतलब है वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी मतलब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन की एक्सपायरी होगी कल राइट सो द मार्केट मे बी लिटिल वोलेटाइल एंड समटाइम्स अनप्रिडिक्टेबल friends if you are new to our YouTube channel do subscribe the channel as well as press the bell icon such that whenever we upload any new video you get a notification on your system right and of course be generous to share the videos with trading community and your friends such that they can also get quality knowledge. Now, if we look at daily chart of Nifty and Bank Nifty today, we can see the performance. Yet again, another spectacular day. More for Nifty. Bank Nifty khas upar nahi gayi, but yet both got positive cues from the global markets and they took a bullish lead. Right. ओवरऑल अगर हम देखेंगे आज फार्मा मेटल आईटी एंड पीएससी सेक्टर्स ने लीड किया लास्ट 2-3 दिन से हमने देखा था कि फार्मा एंड आईटी में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी एंड सडनली आज चेंजेस आ गया टाटा स्टील ओरो फार्मा डॉक्टर रेड्डी ल्यूपिन आरईसी एक्सिस आईटीसी इवन टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज ने आज लीड किया पार्टली एलएनटी कोटेक बैंक इन्फी ये सब भी काफी 2% से ज्यादा मूव किए Reliance and IndusInd Bank, along with Titan, were the biggest losers today. I'm talking about the high weight stocks of Nifty 50, right? Market, of course, again, Nifty closed all time high today at 12,749. कल की जो क्लोजिंग थी वो 12,631 थी आज ओवरऑल हमको 118 पॉइंट का 118 पॉइंट का गेन मिला कल के कंपैरिजन में कम था क्योंकि कल 170 पॉइंट का गेन हुआ था बैंक निफ्टी ने आज ओवरऑल 239 पॉइंट्स गेन किए फ्रेंड्स एंड बैंक निफ्टी क्लोज्ड एट 28,845 राइट एंड ओवरऑल मार्केट की ब्रेड्थ पॉजिटिव रही 43 स्टॉक्स आउट ऑफ 50 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50 एडवांस्ड ओनली 7 डिक्लाइन टुडे हमने आज निफ्टी की जो एस्टिमेशन की थी 12,400 टू 12,800 की थी रेंज and Nifty well within the range trade की while as Bank Nifty के लिए हमने 28,000 to 29,000 की range estimate की थी again Bank Nifty also remained within the same range of course this data was taken based upon previous days price action as well as based upon the data points right and most of the time those data points and price action we analyze in this session, right? And of course, you can also learn to do the same. With practice, you can also find out the trading range for the next trading day. Now, if you look from the trend perspective, again, Nifty as well as Bank Nifty today made higher high and higher low. So uptrend continues. अगर हम कैंडलस्टिक के पर्सपेक्टिव से क्लोजली देखें तो निफ्टी ने एज वेल एज बैंक निफ्टी ने एक हैंगिंग मैन पैटर्न जैसा बनाया है राइट तो हैंगिंग मैन पैटर्न जनरली जब टॉप पे आते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन जोन में आते हैं तो दीज आर द बियरिश पैटर्न ऑल्दो ग्रीन कैंडलस्टिक बनी है बट दीज रिप्रेजेंट प्रॉफिट बुकिंग और काइंड ऑफ एक थकान ये दिखाते हैं राइट एंड ये रिवर्सल का साइन है अगर नेक्स्ट डे कंफर्मेशन होती है तो अगर नेक्स्ट डे बुलिश कंफर्मेशन रहती है वापस मार्केट बुलिश है तो इट विल नॉट बी कंसीडर बट अगर कल प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई और मार्केट नीचे गिरती है दैट विल कंफर्म दैट इट इज hanging man kind of pattern so that's on the daily chart on a weekly chart if you see Nifty and Bank Nifty both have made bullish candlesticks the entire week it has been gaining and gaining right now अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखें फ्रेंड्स अगर निफ्टी कल नीचे गिरती है तो यू वुड सी योर 12,676 हमारा एक पहला लेवल ऑफ सपोर्ट है नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट आएगा हमको 12,634 पे उसके नीचे 12,572 पे एंड उसके नीचे जो फोर्थ लेवल ऑफ सपोर्ट है वो है 12,478 यू कैन रफली से 12,000
12,500 के आसपास में, राइट. And 12,470 पे we have a 23% retracement from this low to this high. So these are the support levels. अगर निफ्टी कल ऊपर जाने की कोशिश करती है तो then 12,767, which is today's high, will be the first level of resistance. Second level of resistance it will get at 12,800. 12,850 third level of resistance and 12,900 is a fourth level of resistance, right. अब जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जा रही है इसके आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस लेवल काफी क्लोज होते जा रहे हैं. You might be wondering कि ये कहाँ से आए. So these are from the retracement extensions, right. Similarly अगर हम बैंक निफ्टी, so upside 12,900 की और लोअर साइड 12,500 की कल के लिए हमको यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज दिखाई दे रही है. बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स अगर देखें, बैंक निफ्टी का डाउन साइड में आती है तो यू कैन सी दैट 28,680 या 685 दिस कुड बी द लेवल जो कि आज का ओपनिंग प्राइस था, राइट. तो ये एक 28,702 ये पहला सपोर्ट लेवल है. नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको है 28,360. थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट है 28,220 एंड फोर्थ लेवल ऑफ सपोर्ट है फ्रेंड्स 27,918. सो 27,900 हम यहाँ पे प्राइस एक्शन से लोअर रेंज देखते हैं बैंक निफ्टी की. Of course, at the end of the session, we'll also look at what are the data points declaring the range of Nifty as well as Bank Nifty. Now, अगर बैंक निफ्टी कल बुलिश होती है फ्रेंड्स तो पहला रेजिस्टेंस जो लेवल आएगा आज का जो हाई था वो आएगा 29,026 पे. 29,134 हमारा सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है. थर्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है 29,273 पे. ये तीनों इनफैक्ट ये all three levels of resistance are very very close by, so you need to be very careful at this level of bank nifty. अगर 29,273 लेवल टूटता है तो 29,564 and 29,791 are the resistance level. So we can say that 29,791 तो roughly 29,800 की रेंज हमको अपसाइड में दिखाई दे रही है और 27,800 की रेंज हमको लोअर साइड में प्राइस एक्शन से हमको बैंक निफ्टी की दिखाई दी, राइट. सो लेट्स गो टू लुक एट द ऑप्शन चेन. We'll do option chain analysis for Nifty for series expiring on tomorrow, 12th November को, right. तो since Nifty has closed at 12,749 तो 12,750 हमारी इसकी at the money स्ट्राइक रहेगी, राइट. सो 12,750 के आसपास में फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि क्या स्ट्राइक्स बनी है जहां पे कि बुल्स एंड बियर्स ने अपनी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की है. सो 12,750 पे ऑलमोस्ट 6.85 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. ठीक ठाक का पुट राइटिंग हुई है. सो बुल्स आर प्रिपेयरिंग फॉर हायर अप्स. 12,700 पे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 1.98 मतलब 2 मिलियन फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं. ऑलमोस्ट 2.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे ओवरऑल. सो दैट विल वर्क एज अ सपोर्ट वन एंड इट सीम्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. 12,650 पे भी 1.3 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. सो दैट विल वर्क एज अ लेवल 2 ऑफ सपोर्ट. 12,600 पे अगर आप देखेंगे तो 2.6 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. That will act as a support 3. So even 12,550 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है. एंड अगर आप 12,500 पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई है. सो बुल्स आर क्लियर दैट 12,500 तक तो बैंक निफ्टी अब नहीं जाएगी क्योंकि they have started unwinding these positions. अनअट्रैक्टिव हो रही है ये क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम कम हो गई है, राइट. सो यहाँ से अगर हम देखते हैं ना फ्रेंड्स तो ट्रेंड जो मैक्सिमम OI है वो है 12,600 पे. सो लोअर रेंज हमको 12,600 की यहाँ पे दिखाई देती है, राइट. सिमिलरली अगर हम बियर्स की पोजीशन देखें तो आज बियर्स ने लोअर लेवल पे काफी अनवाइंडिंग की है. मतलब बियर्स की आज काफी कॉन्फिडेंस बियर्स ने काफी लूज किया है. बट स्टिल 12,700 पे 1.8 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एग्जिस्टिंग. 12,750 पे ऑलमोस्ट 7.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं फ्रेंड्स. एंड वी कैन से दैट दिस विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस 1.5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. इसके ऊपर 12,800 के स्ट्राइक पे यू हैव गॉट 2.3 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट. सो दैट विल वर्क एज अ R2. एंड जो नेक्स्ट मैक्सिमम है वो है 12,900 पे. हालांकि 12,850 भी हमारा
एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट? सो वी कैन से 12,600 से 12,900 की रेंज में हमको डेटा पॉइंट से निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज दिखाई दे रही है, राइट? सिंपली सिमिल the PCR for this series, friends, is 1.56, जो कि वापस बुलिश बायस दिखाई दे रहा है. सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए हमने देखा पीसीआर आज का 1.32 है कल के लिए, एंड रेंज दिखाई दे रही 28,000 से 29,500 की. सो मोर और लेस ये जो ऑप्शन चेन में हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहे हैं, वही हमको प्राइस एक्शन में भी दिखाई दे रहे हैं. सो वी कैन से the technical analysis at this point of time is syncing with the data analysis. Now अगर हम provisional data देखें फ्रेंड्स, आज FIIs का जो नेट बाइंग था इन कैश मार्केट इन इक्विटीज 6,207 करोड़ का था, while as DIs का नेट सेलिंग था 3,464 crore. Now if we look at in the month of November itself, we have hardly 7-8 trading days, and इतने दिन में ओवरऑल FIIs ने ओवरऑल बाइंग की ऑलमोस्ट 29,782 crore की, right? While as the DIs were net seller with a 15,599 crore. So मतलब हाफ सेलिंग हुई है DI के द्वारा और FI के द्वारा डबल बाइंग हुई है. You can put it this way. In options market, FIs, pros as well as retailers are at this point of time bullish in their options positions, and that was also visible from your option chain analysis, right? So ये निफ्टी as well as बैंक निफ्टी दोनों की ऑप्शन चेन की बात कर रहा हूँ जब मैं ओवरऑल ऑप्शन चेन में पोजीशन निकाल रहा हूँ, राइट? सो अलग अलग पार्टिसिपेंट की. नाउ अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देखें फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, तो US 30 अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, US 30 एक ब्रेकआउट की जगह पे, इनफैक्ट इसने 3 दिन पहले ही, राइट, तो ब्रेकआउट दिया था, बट इट कुड नॉट सस्टेन. तो नैस्डैक में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई थी टेक कंपनीज में, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी डाउ जोन्स में भी सेलिंग आई. तो ये एक फैक्टर था. सिमिलरली S&P 500 में अगर आप देखेंगे तो ये भी एक ब्रेकआउट की कंडीशन में आया हुआ है, ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जोन में है. सो अगर ये जोन कल सुबह तक टूटता है फ्रेंड्स, यू वुड सी देन there will be a good surge upside in the market. And जो tools दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो indicators दिखा रहे हैं, वो एक काफी bullish bias दिखा रहे हैं, right? नैस्डैक की बात करें फ्रेंड्स, तो नैस्डैक में 2-3 दिन प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई व्हेन इट वेंट टू द डिस्ट्रीब्यूशन जोन, बट दिस डिस्ट्रीब्यूशन जोन इज नाउ वीक. अगर देखेंगे नैस्डैक में वापस से एक टाइम ऐसा आता है कि जब शेयर्स की प्राइसेस काफी अट्रैक्टिव लगने लगती हैं पार्टिसिपेंट को, तो दिस इज व्हाट हैपन व्हेन द प्राइस ऑफ IT कंपनीज स्टार्टेड टचिंग ऑलमोस्ट 50 days मूविंग एवरेज, बाइंग स्टार्टेड यहाँ पे, राइट? एंड इट्स बैक इन इट्स असेंडिंग चैनल. सो अगेन नैस्डैक इज ऑल्सो लुकिंग bullish today. Now DAX देखें तो DAX has almost, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन में आया हुआ है और आज थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है विद इन द पिछली कैंडल, राइट? लास्ट 2 दिन से अपना DAX जर्मनी में कंसोलिडेशन चालू है. सो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड के जो मेजर मार्केट्स हैं, दे आर somewhere in the distribution zone, and this is either all time high वाला डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, और जैसे भी अगर आप हम यूके की बात करते हैं तो FTSE 100 का फ्यूचर देखते हैं, तो दिस इज ऑल्सो रीचिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन जोन, बट दिस डिस्ट्रीब्यूशन जोन इज ऑफ जून मंथ, राइट? तो ऑफ कोर्स यूरोप में वीकनेस है. वी ऑलरेडी नो दैट यूरोपियन मार्केट्स हैव बीन वीक फॉर लास्ट 3-4 months. कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं वहां पे, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है. बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे मार्केट में पिछले 7-8 दिन में, तो बुलिशनेस हर मार्केट में है. तो दिस इज व्हाट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग our market, right? So now we'll go to Nifty and Back Nifty smaller time frame charts, such that we can see what kind of trading opportunities are visible for us for tomorrow, right? I'm sure जो analysis रोज आ रहे हैं आपसे, उसको आपको उसमें से काफी गाइडेंस मिल रही है ट्रेड करने के लिए, and you are becoming a profitable trader. अगर आप देखेंगे तो 90%, 95% जो एनालिसिस होता है वो करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है, फॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? ऑल्दो दैट्स अ वेरी गुड एक्यूरेसी लेवल. नाउ अगर हम 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं फ्रेंड्स निफ्टी में, तो नाउ सिंस हैंगिंग मैन बना है आज, यू कैन सी द मार्केट वाज क्वाइट वोलेटाइल. एंड अगर मार्केट
12,767 के ऊपर जाती है, कल गैप अप लेके स्टार्ट होती है, या इसके थोड़ा ऊपर नीचे 10-15 पॉइंट के गैप आपके साथ में स्टार्ट होती है, तो यू कैन टेक लॉन्गर ट्रेड फॉर, मतलब आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं 12,800 के 12,850 की रेंज के लिए। हालांकि 12,850 के आसपास में मार्केट वोलेटाइल होना चालू हो जाएगी। 12,900 तक अगर मार्केट जाती है फ्रेंड, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें, एंड दैट वुड बी अ गुड नेट 150 पॉइंट के आसपास में आपको लॉन्ग साइड में मिल सकता है। हालांकि स्ट्रेट मार्केट नहीं जाएगी, मार्केट जैसे ही हायर लेवल पे जाती है तो like it, you will see there is a volatility in the market, profit booking start ho jati hai. There are participants who think that market is ripe now for booking the profit and it deserves a good retracement or correction, right? Now agar nifty mein 12,670 के नीचे गिरावट होती है फ्रेंड्स, तो इन दैट केस शॉर्ट पोजीशन आप ले सकते हो, एंड आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के लिए एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकती है, और आपका 12,572 पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और पार्ट पोजीशन के लिए आपको टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना चाहिए, एंड योर नेक्स्ट टारगेट शुड बी देन इन दैट केस अराउंड 12,500, सो 520 के आसपास है, मतलब आपको एक अराउंड 50 पॉइंट डाउन साइड में और मिल सकते हैं, राइट? एंड बी केयरफुल टुमारो, बिकॉज ऑप्शन एक्सपायरी के दिन मार्केट वोलेटाइल होती है। यू वुड इनफैक्ट आज लग रहा था कि काफी शॉर्ट कवरिंग हुई है जब मार्केट यहाँ पे आ गई थी, तो कल भी ऐसा ही आपको देखने को मिल सकता है, राइट? नाउ लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी अपॉर्चुनिटीज फॉर इंट्राडे इन बैंक निफ्टी फ्रेंड्स। तो बैंक निफ्टी ने भी मोरलेस आज निफ्टी के ही जैसे एक वोलेटाइल मूव दिखाया था, बट वी शेप रिकवरी भी कर ली थी, राइट? सो अगर 29,026 के ऊपर बैंक निफ्टी जाती फ्रेंड्स, तो आप 29,134 के लिए, मतलब 100 पॉइंट के लिए लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। एंड अगर आपको यहाँ पे बुलिश साइन दिखता है, या कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखते हैं, या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको लॉन्ग कंटिन्यू करने की एडवाइस देती है, तो यू कैन फॉलो दैट। अदरवाइज 29,000 यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लें और शॉर्ट पोजीशन बनाने की तैयारी करें। अगेन मार्केट दोनों डायरेक्शन में जाएगी कल, जिस भी दिन वीकली एक्सपायरी होती है, दैट इज हाउ इट गोज जनरली, वन वे नहीं जाएगी मार्केट। नाउ अगर मार्केट में कंटिन्यूअसली बुलिश बायस बना रहता है, यस, देन इन दैट केस आप 29,564 के लिए या 29,700 के लिए अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकेंगे लॉन्ग साइड में। अगर बैंक निफ्टी फ्रेंड्स 28,680 के नीचे जाती है किसी भी कारण से, देन एक शॉर्ट पोजीशन बनेगी आपको, जिसका टारगेट होगा 28,220। सो ऑलमोस्ट आपको शायद 400 पॉइंट के आसपास में शॉर्ट साइड में यहाँ पे आज कल मिल सकते हैं। सो जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट, एंड अगर 28,220 टूटता है, देन योर नेक्स्ट टारगेट वुड बी समवेयर अराउंड 27,760 के आसपास में। ये उतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, और यहाँ पे एक नोविस गैप छूटा हुआ है। ये जो नोविस गैप की विंडोज है फ्रेंड्स, सूनर और लेटर मार्केट कम्स टू फिल अप, दैट्स ह्यूज मैटर ऑफ कंसर्न एज फार एज टेक्निकल एनालिसिस इज कंसर्न। सो दोनों साइड में आप निफ्टी को एंड बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं विद इन द ट्रेडिंग रेंज वी टॉक्ड अबाउट। नाउ अगर हम ओवरऑल आरएसआई के पर्सपेक्टिव से देखते हैं फ्रेंड, तो मार्केट में आरएसआई 77 है। ऑल्दो हम 60 के ऊपर आरएसआई रहता है तो मार्केट को काफी बुलिश बोलते हैं, बट जैसे ही 70 के ऊपर जाना चालू करता है, वी स्टार्ट सेइंग दैट इट इज गॉन इन अ ओवरबॉट जोन। एंड नॉट ओनली आरएसआई बट स्टोकेस्टिक्स इज आल्सो शोइंग इंट्राडे में मार्केट, डेली में या वीकली चार्ट में मार्केट ओवरबॉट जोन में है। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है, एज वेल एज करेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? सो दैट द इंडिकेटर्स कैन कूल ऑफ बिफोर द नेक्स्ट अप मोमेंटम। नाउ आज इंडिया विक्स 2% बढ़ा है, कल 7% बढ़ा। ऑल्दो मार्केट ऊपर जा रही, विच इज अ गुड साइन, बुल्स आर कंफर्टेबल, बट इन इंडिया विक्स का बढ़ना, विच इज अ फियर गेज, राइट, इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि 2 दिन में ऑलमोस्ट 9% का फियर गेज बढ़ गया। अगर मार्केट को और ऊपर जाना है तो इंडिया विक्स को भी कूल डाउन होना पड़ेगा, राइट? एंड ओवरबॉट जोन में, डिस्ट्रीब्यूशन जोन में आप देखेंगे मार्केट में कंसोलिडेशन एंड करेक्शन इज अ वेरी नेचुरल फिनोमेना, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर निफ्टी 12,290 के ऊपर सस्टेन करता है किसी भी करेक्शन के केस में, देन 13,000 प्लस 13,500 वुड बी आवर टारगेट। एंड अगर 12,290 के नीचे जाता है निफ्टी किसी भी कारण से 2-3 दिन में अगले, तो then 11,500 it will retest this level again, right, and then bounce back. So
Similarly, in Bank Nifty अगर आप देखेंगे friends, as long as Bank Nifty remains about 26,350, मतलब ये जो रेंज है, राइट, 61% फिबोनाची का, यहाँ तक रिट्रेसमेंट विल बी हेल्दी रिट्रेसमेंट, नो इश्यूज ऑन दैट. बट इसके नीचे अगर जाती है तो देन यू वुड सी 23,700 के आसपास में वापस से ये 23,700 तक भी बैंक निफ्टी जा सकती है, ऑल्दो एनवायरमेंट अभी बुलिश है, राइट. बट दीज आर द possibilities you should be taking care of. Fear of strict lockdown in Europe, कोरोना का अभी डर कम नहीं हुआ है. ऑफ कोर्स काफी होप्स भी है जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने से, बड़ा स्टिमुलस पैकेज आने से यूएस में. सो दीज आर पॉजिटिव वाइब्स फॉर द मार्केट, अपार्ट फ्रॉम our Q2 results being, most of companies Q2 results being good, right. कल आपको एक और चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कल सीपीआई का डेटा आएगा, आईआईपी का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा कल आएगा, 12 नवंबर को आना है. इन्फ्लेशन का डेटा आपको कल शायद आएगा, एंड आरबीआई वांट्स टू कट इट, राइट नाउ इट इज अराउंड 7%. सो ये सब चीजें मार्केट को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेंगी. आपका बिहार का इलेक्शन पॉजिटिव आया है, दैट्स गुड न्यूज फॉर द मार्केट. अपार्ट फ्रॉम दैट, रिलायंस, अमेजॉन एंड फ्यूचर ग्रुप का जो कॉन्फ्लिक्ट है, दैट्स ऑल्सो नेगेटिव, एंड यू कुड सी दैट रिलायंस एक ही दिन में 3%, 4% गिर जाता है, राइट. सो नीड टू टेक केयर ऑफ द स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज एज वेल, बिकॉज रिलायंस का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है निफ्टी को ऊपर लाने में. तो any kind of adverse news in Reliance also drags Nifty downside, right? So take care of that aspect also. Friends, I'm sure with this analysis, you are becoming more matured and more confident in the market to take your trades. Do comment about our videos and content, what you are liking, what more you would like to us to take care of in our videos. You can write in community tab, or you can like we generally put our analysis and whatever kind of patterns or technical analysis here for various stocks, so you can get advantage from that. Apart from that, there are plenty of videos, so you can write in those videos comment box as well. Your comments, we would like to make our videos more impactful and more effective. Thank you very much for watching our videos and liking them. And if you haven't yet subscribed to our YouTube channel, subscribe it now, please. And also, press the bell icon such that you get intimation on our latest videos. And be generous to share the videos with your friends and trading communities, friends. Signing off until the next video. Good luck, happy trading, happy investing, friends.